इस पुरवकार महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से होगा। आइए पवित्र कुरान से उद्धृत एक अंश के सस्वर पाठ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। कारी मोहम्मद आजम साहब से मेरी दरखास्त है कि कुरान बरहक की चंद आयात की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अना अख्तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा इन्ननी अना अल्लाह أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन कारी साहब. Honorable Prime Minister of India Janab Narendra Modi Sahab, Chief Guest of AMU Centenary Celebrations, Honorable Education Minister of India Janab Naresh Pokhriyal Nishank Sahib, Guest of Honor, and Minister of State for Education Janab Sanjay Dhotri Sahib, AMU Chancellor His Holiness Ali Qadr Dr. Sayyidna Mufazzal Saifuddin Sahab, Pro Chancellor Nawab Ibn Ahmed Saeed Khan of Chhatari, Vice Chancellor Professor Tariq Mansoor Sahab, Pro Vice Chancellor Professor Zahiruddin Sahib, Honorary Treasurer Padma Shri Hakim Sayyid Zillur Rahman Sahib, Postmaster General Agra Division Janab Rajiv Umrao Sahib, Registrar AMU Janab Abdul Hamid Sahib, members of the Executive Council and the AMU Court, retired teachers, staff and students, alumni and alumni of the AMU spread around the world, distinguished guests, ladies and gentlemen. Namaskar, adab, and a very good morning. I extend to you a hearty welcome in the virtual centenary celebrations of the AMU 100 years of academic excellence. A bright winter morning here in Aligarh on 22nd December 2020. A momentous occasion, a grand celebration, a somber observance. एक ऐतिहासिक पल. भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के अनुसार आज दिन मंगलवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी 30/1942 यानी 6 जुमादी उल अव्वल 1442 हिजरी एक तारीख साज इदारे का एक तारीख में दर्ज किया जाने वाला लम्हा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का 100 साला जश्न. The day when a university that has given to the civilized modern world and our beloved country, India, freedom fighters, heads of states, governors, chief ministers, Padma awardees in all categories, civil servants, scientists, writers, speakers, doctors, engineers, actors, film and media personalities, and sportsmen. A university, the academicians of which collaborate with Nobel laureates' labs in overseas research institutions, and a university whose alumni and alumni make for a global presence with a heart that beats for their alma mater. This university celebrates 100 years of academic excellence. In the year 2020, while only a handful of the close to 1,000 Indian universities get to complete 100, the AMU touches the centenary mark of becoming a university by an act of the Parliament from the Madarsatul Uloom 1875 and MAO College 1877, established by Sir Syed Ahmed Khan. To mark this rare distinction, we will very shortly be joined by the Prime Minister of our country,
Ali Janab Narendra Modi Sahib. A Prime Minister who gave us the new education policy, a Prime Minister who was bestowed with the Champions of the Earth United Nations highest environment award, and a Prime Minister who reaches to the people of his country with Mann Ki Baat. To deliver the introductory remarks for this August gathering, we have with us Professor Tariq Mansoor, Vice Chancellor AMU, a medical doctor and surgeon with hours of patient hard toil, an academician with a record of empathy and team spirit for students and fellow teachers, and an academic leader with his objectives firmly set on raising research and educational standards. He took the reins of the university in his hands in the year 2017, the year of the founder's bicentenary, which was also graced by the former and present president of the country, respectively. Of his several centennial contributions to the Ali community and the overall higher education sector of the country is the towering centenary gate opened for public 2 months ago by our revered Chancellor, His Holiness Ali Qadr, Dr. Sayyidna Mufazzal Saifuddin, put together by Professor Tariq Mansoor in a similar vein. The first day cover of the postal stamp to be unveiled by the PM today, followed by his online address, are destined to place AMU on yet another path of excellence for the 100 years to come. जब हम न होंगे हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते, मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के हम रहेंगे खिरामा. I request Professor Tariq Mansoor, Vice Chancellor AMU, for his introductory remarks. Honorable Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Minister of State for Education Shri Sanjay Dhotre ji, Chancellor His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin, Pro-Chancellor Nabab Ibn Sayyid Khan Chatari, Pro-Vice Chancellor Professor Zahiruddin, Honorary Treasurer Hakim Sayyid Zillur Rahman Sahab, Registrar Mr. Abdul Hamid and Registrar General Post Agra, other officers of the university, staff, students, alumni, media persons, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, namaskar and good morning to all of you. On the occasion of centenary of Aligarh Muslim University, I take the opportunity to congratulate all of you. The MAO College in AMU achieved great milestones in these 100 years. And we are all proud of the work university has done in educational as well as other fields. It is a matter of great honor for any institution to celebrate the centenary of its establishment. I am really humbled and honored to be Vice Chancellor on this great and historic occasion. I also had the privilege to preside over the bicentenary birth celebrations of Sir Syed Ahmad Khan in 2017. The foundation of Aligarh Muslim University was a glorious chapter in the history of the development of modern and scientific education in India. A concerted effort to establish a university for the modern education of Indian youth by Sir Syed Ahmad Khan and later by his associates resulted in the establishment of this important institution in December 1920. I will give 3 quotations regarding the Aligarh Muslim University and the MAO College. Professor G.C. Chatterjee, Inquiry Committee appointed at the instance of the Government of India in 1961 observed, Muslim University Aligarh with its open door policy of admitting members of all communities and giving them opportunities to share fully in its residential and corporate life is in a especially privileged position to foster that emotional integration which is essential for the preservation of India's culture and political unity. The second quotation is of Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of India. Delivering the annual convocation address on 20th February 1949 observed that Sir Syed had established in Aligarh not only a college but also an intellectual and cultural center in line with the progressive spirit of the times. The center of this circle was Sir Syed himself, and he attracted around him some of the best intellectuals in the world. The third quotation is of Sir Hamilton Gibbs, a French Orientalist, who characterized MAO College as the first modernistic organization in Islam.
first modernistic organization in Islam. It was not an easy thing in those times to bring a community from the medieval thought process into modern scientific thought process. It required exemplary commitment, conviction, and sacrifice of some great persons under the leadership of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed was an ardent advocate of Hindu-Muslim unity and expressed his desire to see them live in togetherness and oneness. It would be a great tribute to this great man, with India becoming a major power in the field of modern and scientific education across the globe. The alumni of Aligarh Muslim University, they have always played a very important role in the development of the university. They were responsible for carrying on the movement for upgradation of the MAO College into a university. Even now, our alumni are playing an important role in projecting the image of the university in various parts of the India and the world. AMU has got a very unique alumni network, and our alumni are contributing in various ways, such as scholarships, infrastructure, development, and various other fields. The Alumni Affairs Committee is also bringing out a World Alumni Directory in a few days' time. Definitely our alumni, they are our goodwill and brand ambassadors. AMU has played a pioneering role in women education, which will be elaborated by Professor Naima Khatoon in her address. Now we have to look at the future. The university has to lay stress in the next century on research and innovation and a new work culture. We also have to adopt new modes of teaching and research, especially in aftermath of COVID-19 pandemic. While strengthening our traditional departments, we have to look at new courses such as nuclear medicine, genetics, nursing, artificial intelligence, robotic engineering, renewable energy, nanotechnology, forensic sciences, among others. I am sure with the cooperation of all concerned, especially our faculty and students, we have a bright and productive future for the next century. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir, for this introductory remark. मुअज़्ज़िज़ सामीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 7 साला जश्न की तक़रीबात हर अली के लिए इंतहाई मसरत अफरोज़ और बाइस फ़ख्र हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक दर्सगाह ही नहीं, एक मुकम्मल परवरिश और इल्म तहजीब का गहवारा है। उर्दू के मायानाज नस्र निगार मुख्तार मसूद अपनी किताब हर्फ शौक में रकम करते हैं कि जब अलीगढ़ से तालीम मुकम्मल करने के 50 बरस बाद एक दोस्त ने अलीगढ़ की याद के तजर्बे के बारे दरियाफ्त किया तो जवाब दिया, मैं अपना अलीगढ़ अपने हमराह ले आया था। उसे याद करने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा अलीगढ़ मेरे खून में गर्दिश करता है। वो मेरी फिक्र का मुहर्रिक है और महवर भी। वो मेरे हर अंदेशे का महरम और हर अमल की नीयत है। मेरा अलीगढ़ मेरा हाल है, हाल को याद नहीं करते, बसर करते हैं। I must say that a university of such stature has some achievements to recount for the world to emulate. विगत शताब्दी में विश्वविद्यालय की विलक्षण उपलब्धियां रही हैं और प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी, साबिक डीन शोबा इस्लामी दीनियात और हाल के डायरेक्टर सर सैयद अकेडमी से मेरी गुजारिश है कि इस मौजू पे अपना खिताब पेश करें। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of Education Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Minister of State for Education Shri Sanjay Dhotre ji, His Holiness Sayyidana Mufaddal Saifuddin, the respected Chancellor of our university, respected Pro-Chancellor Nawab Sahab of Chitari, Honorable Vice Chancellor of AMU Professor Tariq Mansoor, Pro-Vice Chancellor, Honorable Treasurer, Registrar, and the university functionaries, and other dignitaries, ladies and gentlemen. It is a great privilege and honor for me to present a brief report about some aspects of the achievements of AMU in the last 100 years. Our founder, Sir Syed Ahmad Khan, was a great reformer and visionary, but he knew how to realize his dreams.
and Aligarh Muslim University was the realization of his dream when it came into existence in December 1920. In 1920, the university started with 13 departments of studies. But from 1920 to 1926, university made good progress. At the time of its inception, AMU had less than 1,000 students. But by 1926, approximately 3,000 students were enrolled. The Department of Tib, Unani Medicine, Hindi and Sanskrit and Zoology were also established. In the decade of 1930s, the university saw all-round development and expansion. The development of science and education was most striking. The laboratories of all science subjects were introduced. Research activities also made progress, and the first PhD was conferred in chemistry in 1934. In the field of engineering and technology, a beginning was made with the establishment of the Institute of Technology in 1936. The decade of 1940s was the historical period of the independence struggle, and the Aligarh Muslim University played a prominent role in that. This role began from 1920s itself, when the mass movement started for the freedom of India. Aligarh Muslim University played its active role in responding to the call of Mahatma Gandhi. Some of the distinguished alumni of Aligarh Muslim University were the prominent freedom fighters during non-cooperation, Khilafat movement and subsequent struggles under the leadership of Mahatma Gandhi. Among them we can name Maulana Muhammad Ali, Shaukat Ali, Hakim Ajmal Khan, Mukhtar Ahmad Ansari, Hasrat Mohani, Saifuddin Kichlu, Raja Mahendra Pratap, Khan Abdul Ghaffar Khan, Abdul Majid Khaja, Dr. Zakir Hussain, and Captain Abbas Ali, a close associate of Netaji Subhash Chandra Bose. The post-independence period and the decade of 1950 onwards is a period of unprecedented expansion of Aligarh Muslim University as a prime institution of higher education in India. It is also a period of gaining national and international repute and a significant contribution to the nation building. The national repute and importance of AMU can be gauged by the fact that all the prominent leaders, including Mahatma Gandhi, Babu Rajendra Prasad ji, Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Pandit Govind Ballabh Pant, Srimati Sarojini Naidu, Shri Rajgopalacharya, Dr. S. Radhakrishnan, Shri Lal Bahadur Shastri, Shri Jaiprakash Narayan, Mr. Fakhruddin Ali Ahmad, Gyani Zail Singh, Dr. APJ Abdul Kalam, Shri Pranab Mukherjee, and our present President of India, Shri Ramnath Kovind, were among those who visited the institution and provided their support to us. At the same time, Aligarh Muslim University also gained great international credentials. Among many foreign luminaries and leaders who visited AMU are Mrs. Eleanor Roosevelt of USA, Raza Shah Pahlavi of Iran, Malik Saud of Saudi Arabia, Jamal Abdul Nasser, President of Egypt, Tinku Abdul Rahman of Malaysia, Sheikh Zayed Sultan Al Nahyan, and many other heads of states and prominent leaders of the world. AMU established academic and research repute also. 7 Nobel laureates, including Sir C.V. Raman, Arthur Crompton, Alexander Todd, Abdul Salam, Mother Teresa, Dalai Lama, Takaki Kajita visited Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University also played significant role in the nation building and in the leadership of the country and other countries also.
It produced 9 heads of state of different countries, 19 governors, 17 chief ministers, 4 Supreme Court judges, 11 High Court judges. The highest civilian award, Bharat Ratna, was bestowed upon 2 AMU alumni, and the second highest civilian award, Padam Vibhushan, was conferred on 8 of them. 27 Padam Bhushan and 36 Padam Shri awards were also conferred upon the AMU students up till now. At present, AMU consists of 13 faculties comprising 120 departments, which teach more than 350 courses. It is primarily a residential university which provides hostel facilities to more than 20,000 out of 35,000 students on our roll. The Central Library of the university, named after Maulana Abul Kalam Azad, performs the function of a national library with no other university library of the some continent can match it in the collection of Oriental manuscripts and in the rare books. It has some of the highly valuable Sanskrit works translated into Persian like Mahapurana, Bhagavad Gita, Mahabharata, Leelavati, etc. It also has Dara Shikoh's rare books and manuscripts which have been digitized and uploaded for the benefit of the researchers. In conclusion, we would like to say that AMU is not only a prime educational institution of our country, which is our pride, the pride of the whole country, but it is also symbolizes the great idea of India, our great nation. It is a symbol of nationalism, secularism, and unity in diversity. I congratulate all on this historical occasion of the centenary celebrations. Thank you. Thank you very much, Professor Naqvi Saab. Ladies and gentlemen, here today we will be addressed by the Honorable Prime Minister of India, Janab Narendra Modi Sahab, as chief guest, and we have been joined by the Honorable Education Minister of our country, Janab Ramesh Pokhriyal Nishank Sahab, as guest of honor. Both of them espouse the cause of women empowerment reflected in the slogan, Beti Bachao, Beti Padhao. एक समय वो भी था जब हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद को नारी की दुर्दशा पे लिखना पड़ा था, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक में उनके रफ़का मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, शिबली नुमानी और राजा जयकिशन दास के साथ उनकी सवाने के मौलिफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी रहे हैं। हाली ने अपनी शाहकार नज्म चुप की दाद औरत को मानून करते हुए लिखा था, अफसोस दुनिया में बहुत तुम पर हुए जोर जफा, हक तलफियां तुमने सही बेमहरियां झेली सदा. This later became a masterpiece in early feminist literature, but one couple with a dream for the daughters changed it all. For an account of women in AMU at 100, I request Professor Naima Khatoon Gulrez, Principal Women's College, AMU. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Honorable Minister of State for Education, Shri Sanjay Dhotre ji, respected Chancellor, Pro-Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Treasurer, Registrar, distinguished guests, students and staff. The momentous and proud occasion of the centenary celebration makes it clear Aligarh Muslim University is not just any other university. It is the name of a movement and a mission to spread the light of knowledge, scientific temperament, tolerance, inclusiveness, and dispel the darkness of ignorance and narrow-mindedness. A seminal contribution of the Aligarh movement to the collective India, it is in its insistence on women empowerment. It made female education a reality at a time when it was considered a taboo, as women's segregation is taken as a much revered moral virtue. Parda was more important than their education and personality development. The Aligarh movement had conflicting voices regarding women's education, and initial bottlenecks prompted Gail Minault and few others to conclude that the founder had shown a degree of inconsistency while addressing the issue of women education and rights.
However, the Aligarh movement in its entirety did not falter on this count, as many companions of Sir Sayyid relentlessly espoused the cause of female education. The reformist movement of Aligarh, with its focus on women's education, had started to pick up momentum since the end of the 19th century and became more assertive in its demand for availability of formal education and institution with the advent of the 20th century. Ghulam Saqlain, Karamat Hussain, Mumtaz Ali, Shaukat Ali, and Sheikh Abdullah were among the most active leaders for the cause. Sheikh Abdullah subsequently became the Secretary of Women's Education Section in 1902. He, along with his wife, Wahid Jahan Begum, established a madrasa or school for girls, which is the citadel of women education and now known as the AMU Women's College. It started with the foundation of a female madrasa in the year 1904. The wife of the then Lieutenant Governor of UP, Mrs. Potter, laid the foundation stone of a boarding house for girls' education in its premises. Sheikh Abdullah later founded the Female Education Association and started Risala-e-Khatun to promote the cause of female education. Within a few decades, Aligarh produced poets which would address women not as beloved but as the purveyor of nationalism who symbolized female emancipation. असरारुल हक मजाज wrote, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था. A very important name for the cause of female education is Begum Sultan Jahan, who was deeply involved in the development of Mohammedan Anglo-Oriental College. In 1914, she became the president of the All India Muslim Ladies Association and laid the foundation stone of the Sultania Hostel in Girls High School. Begum Sultan Jahan later became the founding chancellor of Aligarh Muslim University from the year 1920 until her death in the year 1930. In the year 1937, Women's College was established and now more than 3,000 female students are enrolled here. The students are not only from India but also from Malaysia, Thailand, Iran, Bangladesh, Mauritius, Indonesia, Turkmenistan, Nepal and Afghanistan, who are enrolled in its 34 courses in 6 faculties, availing the facilities of smart classrooms, having Wi-Fi facility, modern laboratories, library, and modern facilities for co-curricular and extracurricular activities. The premises offers a variety of experience to the enrolled girls. The university also imparts technical and vocational education and has a women's polytechnic and a center for skill development and career planning. It also has an advanced center for women's studies. AMU has contributed to female education in a massive way in the past. However, it does not and should not make us complacent. Hence, we need to invest more material, infrastructural, and human resources into the cause of female education and make the environment conducive for their growth so that the talents of women who comprise almost half of our population do not go waste, but they are rather put to the good use of national development. And I strongly believe that in future too, our students will scale greater heights in science and technology as well as humanities to make the university and the nation proud. Thank you. थैंक यू प्रोफेसर नईमा. ख़वातीनो हज़रात, वो अजीम हस्ती जो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे पर फायज है, मुल्क गिर ही नहीं बल्कि आलमगीर रूहानी रहनुमा की हैसियत रखती है. हिज होलीनेस आली कद्र डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने 2018 में दूसरी मर्तबा हमारा चांसलर बनना कबूल फरमाया और आज 100 साला जश्न की तकरीबात में उनकी ऑनलाइन शिरकत हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है. अवामुन्नास में आली कद्र के एहतराम का ये बुलंद दर्जा है कि मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जो अब से कुछ ही देर में हमसे खिताब करने वाले हैं, जब सूबे के वजीर आला के हमरा उनकी अशरे मुबारक की रूहानी मजलिस में नंगे पांव शामिल होते हैं तो एहतरामन दस्तबस्ता होते हैं और दिल अकीदत से लबरेज होता है. आपके दादा जान सैयदना ताहिर सैफुद्दीन और वालिद मोहतरम सैयदना बुरहानुद्दीन भी इस जामिया के चांसलर रह चुके हैं और ये इजाज किसी दूसरे खानदान और कौम को नहीं हासिल है. 53वें दाई अल मुतलक दाऊदी बोहरा मुस्लिम कौम हिज होलीनेस आली कद्र सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से दरखास्त है कि 100 साला जश्न के इस मौके पर अपने पुरमग़ज़ खिताब से नवाजें. अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
व बिही अस्तईन अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब, प्रो चांसलर नवाब इब्न सैयद खान ऑफ छतारी, वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब, मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे निहायत मसर्रत है कि मैं आज एक बार फिर इस खुशनुमा बज़्म में आप हज़रात से मुखातिब हूँ। दुनिया भर में अपनी इल्मी खिदमात के लिए मशहूर इस दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब में आज नामी गिरामी शख्सियात मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से सभी मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी ने वतन अजीज हिंदुस्तान की खिदमत में 1 सदी 100 साल मुकम्मल की है और इसके तलबा, असातिज़ा और मुंतज़िमीन अपनी मेहनत से इल्म व फ़न के मुख्तलिफ मैदानों में हिंदुस्तान के परचम को सर बुलंद किया है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज ये बात भी हम सब के लिए बाइस मसर्रत है कि हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब यूनिवर्सिटी की इस 100 साला तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं। मैं नज़द रब दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला वतन और इंसानियत की खिदमत के लिए उन्हें क़ुव्वत अता फरमाए और सेहत व सलामती की नेमतों से नवाजे और वतन अजीज हिंदुस्तान तरक्की की राह पर हमेशा आगे बढ़ता रहे। मुल्क में और तमाम आलम में अमन व अमान कायम रहे, खुशहाली आम हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, दीन इस्लाम में तालीम को इबादत करार दिया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि अरबातुन तलज़मु कुल्ल ज़ी हिजन व अक़लिन मिन उम्मती। क़ीला या रसूलल्लाह मा हिया? क़ाला इस्तिमाउल इल्म व हिफ्ज़ुहु वल अमलु बिही व नशरुहु। यानी 4 चीज़ें मेरी उम्मत के हर ज़हीन और अक़लमंद इंसान पर लाजिम है। आपसे पूछा गया कि ए रसूल खुदा, वो चीज़ें क्या है? आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि पहली चीज़ ये कि हर इल्म को गौर से सुना और दूसरी चीज़ ये कि जो इल्म हासिल किया है उसे हमेशा याद रख। और ये इल्म कब याद रहता है और कब इसका फ़ायदा होता है कि जब उसके मुताबिक अमल किया जाए। तो तीसरी चीज़ ये कि इल्म के मुताबिक हमेशा अमल करते रहना। और चौथी चीज़ ये कि जो इल्म हासिल किया है उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना। हाज़िरीन किराम, दीन इस्लाम में तालीम का असल मकसद यही है कि उसके मुताबिक अमल करके कौमी और आलमी मुश्किलों को हल करने के लिए इख्तिराई रास्तों को तलाश किया जाए और सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाया जाए। वो तालीम ही नहीं है जिस तालीम के मुताबिक अमल न हो और उसका फ़ायदा किसी को हासिल न हो। जाहिर है कि इंसानियत की बेहबूदी के लिए कोशिशें करना अरबाब इल्म पर वाजिब है। इल्म और अमल से हर मुश्किल का हल निकल आता है। इल्म इंसानों के फासलों को कम कर देता है और दिलों को जोड़ देता है। आज इस आलमी वबा कोविड की
दुश्वारियों से निजात पाने के लिए तमाम आलम की उम्मीदों अहले इल्म से ही वाबस्ता है। इस मुश्किल दौर में हम देखते हैं कि बनी नौ इंसान को तिब्बी, माशी, मुआशरती, सोशल और इसके अलावा हर शोबे में सबात व करार के लिए आपसी ताउन और बाहमी इत्तिहाद की बेहद जरूरत है और ये ताउन और इत्तिहाद को पैदा करने की जिम्मेदारी तालीमी और हुकूमती इदारों के कंधों पर रहती है और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू के बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ और बारगाह इलाही करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस आलमगीर वबा कोविड की बला से बेहक़ इमाम हुसैन सलवातुल्लाह अलैह तमाम इंसानों को आज़ाद करे, रिज़्क़ में कुशादगी अता करे। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और मुख्तलिफ तबके के लोगों जिन्होंने इस मुश्किल हालात में इबादुल्लाह की मदद की है, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और जो लोग वैक्सीनेशन मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कामयाब करे। अल्लाह ताला इल्म अदब के इस खूबसूरत चमन को अपनी अल्ताफ से सरसब्ज़ व शादाब रखें। उसके तलबा, असातिज़ा और मुंतज़िमीन को अपनी इल्मी और फन्नी सलाहियतों से वतन और इंसानियत की खिदमत करने की नेक तौफीक अता फरमाए। इन्नहु समीउ दुआ करीबुन मुजीब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम, आपके इस खिताब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया और आपकी हर दुआ पे आमीन। देवियों और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि पूर्व में भी माननीय शिक्षा मंत्री का स्नेह और आशीष हमें प्राप्त रहा है। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स ही हैज बीन विद अस ट्वाइस ऑनलाइन, once to inaugurate our medical college's exam center and then to address us as chief guest in our seminar on NEP and release a book on quantum physics. Today he is here with us again और उनसे उनके उद्बोधन के निवेदन के लिए और उनके स्वागत के लिए मेरा निवेदन AMU के कुलपति श्री तारिक मंसूर से है कि वे मिनिस्टर साहब का स्वागत करें। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से और अपनी ओर से अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका दिल से आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इसकी शोभा बढ़ाई। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का भारत के इतिहास में दो रीजंस की वजह से हमेशा नाम लिखा जाएगा। एक वजह यह है कि इन्होंने जो ऐतिहासिक शिक्षा नीति दी है, ये शिक्षा नीति, इसकी खूबसूरती ये है कि ये कंसेंसस और कंसल्टेशन के बेस्ड है। इसी वजह से जितने हमारे राज्य हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने शिक्षा नीति को बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट कर लिया है और ये काम बहुत मुश्किल था। इसलिए हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसमें जो है अलग अलग तरह के विचार आते हैं, अलग अलग तरह की सोच होती है लोगों की, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके दिखाया। दूसरी वजह जो होगी जिसमें इनका शिक्षा के इतिहास में इनका नाम हमेशा याद किया जाएगा, वो जो शिक्षा मंत्री ने नेतृत्व दिया है कोविड-19 पैंडेमिक में। विद्यार्थियों का, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हों चाहे यूनिवर्सिटी के, उनका एक साल इन्होंने बचाया। नीट, जेई, क्लैट, सब कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो हैं वो हो गए। इसके अलावा इन्होंने जो स्टूडेंट्स का मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, शिक्षा मंत्रालय ने और शिक्षा मंत्री ने इसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। श्री रमेश पोखरियाल जी
मूल रूप से एक लिटरेरी फिगर हैं। उन्होंने 60 से ज्यादा अपनी पुस्तकें छापी हैं और लिखी हैं, और इन पुस्तकों को सिर्फ हिंदी में ही नहीं लिखा गया है, इनका जो है वो विदेशी भाषाओं में भी ट्रांसलेशन हुआ है। मैं शिक्षा मंत्री को एक और बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले उन्हें वातेयन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फील्ड ऑफ लिटरेचर दिया गया है, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये लंदन में दिया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं पूरी AMU फ्रेटर्निटी की तरफ से, और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना एड्रेस दें। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे सहयोगी मंत्री केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन जी, जो दूसरी बार ये उन्होंने हमको गौरव प्रदान किया है, प्रो कुलाधिपति नवाब इब्ने शहीद खान जी, विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर जी, प्रो BC प्रोफेसर जहीरुद्दीन जी, महिला कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर नईमा जी, और रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद जी, प्रोफेसर अली मोहम्मद नकवी जी, निदेशक सर सैयद अकादमी, उच्चतर शिक्षा के भारत सरकार में सचिव श्री अमित खरे, सभी कार्य परिषद के सदस्यगण, सभी अधिकारी वर्ग, सभी डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय, सभी कर्मचारी, शिक्षक वर्ग और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य भाई और बहनों, और जो देश और विदेश में पूर्व छात्र जुड़े हुए हैं, वर्तमान में छात्र जुड़े हुए हैं, उनके अभिभावक जुड़े हैं, मैं इस अवसर पर, जबकि हम आज एक उल्लास और उत्सव के अवसर पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में अपने विश्वविद्यालय का 100 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सर सैयद अहमद खान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने 133 वर्ष पूर्व जो सपना देखा, आज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो सपना साकार हो चुका है। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक है। 1964 के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं। यह विश्वविद्यालय की स्थापना के 100वें वर्षगांठ पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। AMU के 100 वर्ष के इतिहास में अनेकों ऐतिहासिक पड़ाव आए, जिन्होंने देश को नई दिशा दी। शैक्षणिक संस्थान के रूप में AMU राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सदैव ही अग्रणी रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित किया है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, 2 भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान, 8 पद्म विभूषण, 28 पद्म भूषण, 37 पद्मश्री तथा भारत और विदेशों के 90 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे पदों पर सम्मान मिला है। इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्रों को प्रशासनिक क्षेत्र में भी तमाम एक लंबी श्रृंखला है, और औद्योगिक क्षेत्र के में भी जाने वाले देश और विदेश में एक लंबी श्रृंखला है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिकों को भी तैयार किया है, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के 38 फेलो भी शामिल हैं, और यह दुनिया का शायद पहला एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो 1920 में
एक महिला बेगम सुल्तान जहां संस्थापक चांसलर के नेतृत्व में जो एक महिला महाविद्यालय अस्तित्व में आया होगा, जिसकी निदेशक ने अभी उसके बारे में अवगत कराया है, शायद ये दुनिया का पहला ऐसा अद्भुत उदाहरण होगा। ये हमारी महिलाओं के प्रति, इस देश की महिलाओं के प्रति सम्मान को सर्वोच्च शिखर पर प्रदर्शित करता है। 1877 में सर सैयद अहमद खान ने देश में आधुनिक शिक्षा के विकल्प तैयार करने की जो नींव रखी, जैसे 1920 में विस्तार मिला और आज 2020 में 100 वर्ष के स्वर्णिम अनुभवों के उपरांत यह संस्थान गर्व और गरिमा के साथ अग्रिम पंक्ति में स्थापित हो चुका है। एएमयू की स्थापना जिस व्यापक सोच के साथ की गई थी, उसके दो मुख्य केंद्र विशेष करके थे। नंबर 1, पुरातन एवं आधुनिकता का समन्वय, और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व और पश्चिम के बीच जो श्रेष्ठ है उसको वरीयता देना और अतीत की भ्रांतियों को दूर करना। जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सर सैयद अहमद शैक्षणिक धरातल पर लाने की वकालत करते रहे, आज वह न केवल संविधान में संवैधानिक कर्तव्यों का हिस्सा है, अपितु तो हमारे शैक्षणिक आदर्श के रूप में भी स्थापित हो चुका है। 100 वर्ष का समय कम नहीं होता। अनेक उतार और चढ़ाव इसके जीवन में आए होंगे। ऐसे अविष्ट संस्थान भी अनेकों चुनौतियों और संघर्ष का साक्षी है। एएमयू की 100 वर्षों की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें तमाम पड़ाव आए होंगे, जिसे हम सभी अद्भुत शैक्षणिक सफलता के रूप में आज स्वीकार कर रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्राथमिकताएं होती हैं जो कभी बदलती नहीं हैं। दिसंबर 1964 में एएमयू के दीक्षांत समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने युवाओं के नाम उद्बोधन में हमें एक ऐसा मंत्र दिया जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शास्त्री जी ने कहा था, देश के प्रति वफादारी अन्य सभी प्रकार की वफादारियों से ऊपर होती है। यह एक पूर्ण निष्ठा है जिसकी तुलना किसी से अन्य से की नहीं जा सकती है। अगर इस भाव को मैं पूरे शब्दों में समाहित करूं तो जो वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जेएनयू कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में जो कहा था उसका मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नेशन फर्स्ट अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि है। सभी विचारधाराएं, व्यक्तित्व राष्ट्रीय धारा में समाहित हो जाते हैं। यह एक ऐसा पैमाना है जो हम अपने जीवन में ढाल लें तो कभी भी गतिरोध और किम कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी। नेशन फर्स्ट के साथ अगर हम कहें कि नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, हमारा एक ही कैरेक्टर हो जिसके केंद्र में इंडिया फर्स्ट हो, जिसमें भारत भी और भारतीयता भी हो। आज पूरे विश्व ने भारत और भारतीयता की ताकत को स्वीकार किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरा विश्व सम्मान और आदर्श की दृष्टि से देखता है। नई शिक्षा नीति भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन का मूर्त रूप है। जैसे अभी हमारे यशस्वी हमारे कुलपति जी ने कहा नई शिक्षा नीति के बारे में, ये जो नई शिक्षा नीति की नींव है ये भारतीयता पर आधारित है और उसका विस्तार वो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। मैं समझता हूं कि जो इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी की जो आधारशिला है वो निश्चित एक और सशक्त, शिक्षित और जीवन मूल्यों को प्रेरित समाज का निर्माण करेगी, तो वहीं देश को समृद्ध भी बनाएगी। मानव प्रकृति हमेशा प्रगतिवादी और सुधारवादी होती है, यानी सुधार यानी रिफॉर्म जीवन का सार। अगर हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे देश का भविष्य को ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे। आज हमारे पास मजबूत लीडरशिप है, विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति है। हमें रिफॉर्म भी करना है, परफॉर्म भी करना है और ट्रांसफॉर्म भी करना है। इसी सोच और विस्तार को हमने नई शिक्षा नीति में समाहित किया है। 21वीं सदी के नए भारत का ये विजन डॉक्यूमेंट है। मैं ये समझता हूं कि भारत जो विश्वगुरु था है और वो भारत विश्वगुरु रहेगा। यही भारत ज्ञान की महाशक्ति बनेगा। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग
हम सब सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस परिदृश्य में शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी और भी दुगना हो जाती है। जो संस्थान चुनौतियों का सामना एकता और सामूहिकता के साथ करते हैं, वही विजयश्री को भी प्राप्त करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी अपने सामाजिक और शैक्षणिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरे समर्पण के साथ किया। चाहे एमओयू स्टाफ के द्वारा कोविड काल में पीएम केयर फंड में 1.4 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का योगदान हो या 2 लाख से भी ज्यादा कोविड का परीक्षण हो। कोविड परीक्षण के लिए हजारों स्वयंसेवकों का रजिस्ट्रेशन एएमयू के राष्ट्रीय चरित्र को साबित करता है। ये मात्र कुछ उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि संस्थान ने अपने योगदान से अपनी योग्यता और विश्वसनीयता में लगातार मूल्यवर्धन किया है। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की त्रिवेणी भी इसी संस्था की श्रेष्ठता का मानदंड होती है। एएमयू ने तीनों क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्च अक्षुण्णता बनाए रखा है। इसके लिए पूरी एएमयू परिवार को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। जो अभी तमाम विवरण विश्वविद्यालय के बारे में आया है। हर संस्थान की अपनी एक संस्कृति होती है, परंपरा होती है, सामाजिक मूल्य होते हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस एक प्रतीक है विविधता का, और जहां हमें छाप मिलती है मिनी इंडिया की। आभास होता है आधुनिकता के पारंपरिक जीवन शैली के अनोखे संगम का। ऐसी खूबसूरती देश के चंद गिने चुने संस्थानों में ही संरक्षित है। उनमें भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान है। मैं कहना चाहता हूं 1000 विश्वविद्यालय इस देश के अंदर, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक अध्यापक हैं। और यदि छात्र और छात्रों की संख्या देखें तो अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके सानिध्य में शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहल श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है। संवाद, सहभागिता और सहयोग की प्रवृत्ति से हर विचार को नई ऊंचाई मिलती है। इसी व्यापक सोच का विस्तार करते हुए हमारे कैंपस में रचनात्मक, आशावादिता, संवेदनशीलता को और सुदृढ़ता मिलेगी। इसे न केवल हम तेजी से आगे बढ़ेंगे बल्कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में भी हम निश्चित रूप में अग्रसर होंगे। पेड़ के नीचे 7 छात्रों से शुरू हुआ यह महाअभियान आज 38,000 छात्रों के साथ एक व्यापक स्वरूप हासिल कर चुका है। देश के चारों कोनों में विश्वविद्यालय के कैंपस महत्वपूर्ण शिक्षा का पर्याय बना हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी यही देखने को मिलती है। वहीं आत्मनिर्भर भारत की प्रयोगशाला की छवि भी इस विश्वविद्यालय के कैंपस में मुझे दिखाई पड़ती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञान की रोशनी इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो जलती है वो नए भारत, जो मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत, जो सशक्त होगा, सुंदर होगा, आत्मनिर्भर होगा, श्रेष्ठ होगा, जो भारत पूरी दुनिया के लिए एक अभिनव होगा, उस भारत की निश्चित रूप में स्थापना की दिशा में ये नींव का पत्थर साबित होगा। मैं आपकी कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं, विश्वविद्यालय की तराना की कुछ पंक्तियां, जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, जो अब्र यहां से उठेगा वो सारा जहां पे बरसेगा, हर जू ये रवा पर बरसेगा, हर कोह ये गिरा पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। अब ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो 4 पंक्तियों के साथ जो उन्होंने ए वतन तेरे लिए मेरे एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए वो गुनगुनाया था कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर संवेदना खोई नहीं है, क्या है बलिदान जीवन निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। आप सबको मेरा अभिवादन। और प्रधानमंत्री जी को जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने जो लीजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया है, मैं देश के पूरे शिक्षा परिवार की ओर से उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has joined us, and I request Vice Chancellor Aligarh Muslim University, Professor Tariq Mansoor,
to extend him a warm welcome. Honorable Prime Minister and Chief Guest Shri Narendra Modi ji, Honorable Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Minister of State for Education Shri Sanjay Dhotre ji, Secretary Higher Education Mr. Amit Khare, Chancellor His Holiness Sayyidina Mufaddal Saifuddin Sahab, distinguished guests, AMU fraternity, alumni and students. Assalamu alaikum, namaskar and good morning. It's a matter of great privilege and honor for me to welcome our esteemed Prime Minister Shri Narendra Modi for the centenary function of Aligarh Muslim University. Today is a historical day for two reasons. One, our university has completed 100 glorious years from its inception. Two, after a gap of 56 years, an incumbent Prime Minister of our country is taking part in the university celebrations. Thank you, sir, for accepting our invitation. Shri Narendra Modi is a visionary leader who has dedicated his entire life to the service of our country and who has provided India and all Indians a bold and lofty vision. His life's story, one of exemplary work ethics, dedication, rising by overcoming hardship and obstacles, is an inspiration to every Indian. Shri Narendra Modi has also played a pivotal role in elevating India's image globally. It is due to his vision and far-sightedness that India has taken a firm stand against expansionist policies in our neighborhood, and this has been appreciated much the world over. Under the astute leadership of Shri Modi, India has been able to strengthen its traditional and historical ties with the West Asian countries, as well as other world powers. The welfare of the economically poor is always the foremost priority of Shri Narendra Modi, and we have witnessed this in various schemes launched during his tenure. By committing to Sabka Saath Sabka Vikas, the Prime Minister has voiced his concern for the economic and social upliftment of India's poorest. I take this opportunity to congratulate the Prime Minister and the Education Minister for the new education policy, which will transform the education system in India. The Education Minister has provided able leadership in the field of education in the time of COVID-19 pandemic. The entire AMU fraternity and I once again extend a hearty welcome to you, sir, and to all other esteemed guests, including our distinguished Education Minister. A centenary is a landmark achievement in the history of a university. On this historic event, thousands of alumni like me feel an overwhelming sense of pride and love for our founder, Sir Syed Ahmad Khan. A true patriot of the soil, the guiding principle of Sir Syed's life is described in one of his famous quotes. The first requisite for the progress of a nation is the brotherhood and unity among all sections of the society, unquote. A champion of Hindu-Muslim unity, he practically demonstrated how to achieve communal harmony and brotherhood among people of all faiths. The doors of this great institution have since always been open to people of all religions, castes and creeds. AMU, a unique symbol of India's composite culture, is committed to the development of interfaith understanding among all the religions of the world. For this, we have established the Dara Shikoh Center for Interfaith Understanding and Dialogue. For centuries, despite many diversities, we are living as a people in unity and oneness. That is what makes our Bharat unique. This is the message from this ancient land, Bharat, to the entire world. Our alumni residing in India and abroad have a deep bonding and love for their alma mater and play a significant role in the development and profile of the university. The university has produced countless distinguished scholars in various fields who have made a mark in the country and abroad. Besides being a great seat of learning in traditional fields, AMU today is also at the forefront in imparting modern and scientific education. AMU has contributed immensely
in the country's struggle for independence and nation building. Throughout its history, this institution has changed the lives and destinies of innumerable families, majority of who belong to the economically weaker sections of the society. Today, as per official figures, the Muslims are at the lowest rung of the educational and socio-economic ladder. It needs the support of the Government of India and various other agencies for its upliftment. AMU offers unstinted support in achieving this goal in accordance with Section 52C of the AMU Act. AMU is also at the forefront in the struggle to achieve women's empowerment through education. For this, in the centenary year, we have submitted a proposal for establishing an Institute of Professional Women's Studies to the government for consideration. Honorable Sir, we look forward to your consideration for this proposal and other projects submitted. Your good wishes and support will go a long way in achieving objectives and solving other problems and issues facing the community today. Your presence today has ignited positivity and hope among all of us. It has ignited positivity and hope among all of us. We wish the university and our country will attain new heights of glory and achievement under your able guidance and leadership. AMU, an institution of national importance, needs continued support to maintain its historical, spatial, and constitutional character for the good of the nation. I take the opportunity of inviting you to visit our beloved institution physically whenever it is possible. Our campus is one of the best in the world, and it will be a pleasure to host you. आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चमन सिर्फ डिग्री ही नहीं देता, बल्कि मोहब्बत, तहजीब, भाईचारा और देशभक्ति भी देता है. थैंक यू. जय हिंद. I request the Honorable Prime Minister to release the postal stamp issued by the Department of Post and Telegraph on Aligarh Muslim University on the occasion of the centenary. I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly deliver his address. नमस्कार. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय धोत्रे जी, वाइस चांसलर भाई तारिक मंसूर जी, सभी प्रोफेसर्स, स्टाफ, इस कार्यक्रम में जुड़े एएमयू के हजारों छात्र छात्राएं, एएमयू के लाखों एलुमनाई, अन्य महानुभाव और साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आपने एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का मौका दिया है. मैं तस्वीरों में देख रहा था सेंचुरी गेट, सोशल साइंस डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन, तमाम विभागों की बिल्डिंग्स को खूबसूरती से सजाया गया है. ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है,
इनके साथ शिक्षा का जो इतिहास जुड़ा है वो भारत की अमूल्य धरोहर है। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीग्स यही कहते हैं ना आप लोग, पार्टनर्स। आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है, एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट हैं तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं
देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। साथियों, बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की यह भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाएं। क्योंकि एएमयू में जो भी बातें वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर वो राष्ट्र के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोड़ेंगे। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाने की। आपको एक तरफ अपनी यूनिवर्सिटी की सॉफ्ट पावर को और निखारना है और दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दायित्व को निरंतर पूरा करना है। मुझे विश्वास है एएमयू से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र छात्रा अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। साथियों, अपनी इस बात को विस्तार देते हुए सर सैयद ने एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्थ रहना जरूरी है, वैसे ही देश की समृद्धि के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है। साथियों, आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र इसका मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। आज देश गरीबों के लिए जो योजनाएं बना रहा है,
जो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं, बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, बिना किसी भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए, बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया, बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एक एलुमनाई से हुई थी। वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने तो इसका लाभ सभी को हुआ। ये शौचालय भी बिना भेदभाव ही बने थे, लेकिन एक उसका एस्पेक्ट ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है और न ही एकेडमिक वर्ल्ड का इस पर उतना ध्यान गया है। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हर स्टूडेंट इस पर गौर करे। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। गांव-गांव शौचालय बने। सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। आज भी एएमयू के पास ये गौरव है कि इसकी फाउंडर चांसलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। 100 साल पहले की परिस्थितियों में
ये किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। आधुनिक मुस्लिम समाज के निर्माण का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बढ़ाया है। साथियों, पहले ये कहा जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविष्य खुद तय कर सके। एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ लेकर आते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में होता है एम्पावरमेंट। एक एम्पावर्ड विमेन का हर स्तर पर, हर फैसले में उतना ही बराबर का योगदान होता है जितना किसी और का। फिर चाहे बात परिवार को डायरेक्शन देने की हो या फिर देश को डायरेक्शन देने की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश की अन्य शिक्षा संस्थानों से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को शिक्षा में जोड़े और उन्हें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन तक लेकर के जाएं। साथियों, एएमयू ने हायर एजुकेशन में अपने कॉन्टेम्पररी करिकुलम में उससे बहुतों को आकर्षित किया है। आपकी यूनिवर्सिटी में इंटर डिसिप्लिनरी विषय पहले से पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई छात्र साइंस में अच्छा है और उसे हिस्ट्री भी अच्छी लगती है तो ऐसी मजबूरी क्यों हो कि वो किसी एक को ही चुन सके। यही भावना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। इसमें 21वीं सदी में भारत के स्टूडेंट्स की जरूरतों, उसके इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। हमारे देश का युवा नेशन फर्स्ट के आह्वान के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो नए नए स्टार्टअप्स के जरिए देश की चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है। रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक आउटलुक उनकी पहली प्रायोरिटी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के युवाओं की इसी एस्पिरेशंस को प्राथमिकता दी गई है। हमारी कोशिश ये भी है कि भारत का एजुकेशन इकोसिस्टम दुनिया के आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक बने। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था है, उससे स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा के बारे में फैसले लेने में आसानी होगी। हर एग्जिट ऑप्शन के बाद उन्हें एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स की फीस की चिंता किए बिना अपना फैसला लेने की आजादी होगी। साथियों, सरकार हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ाने और सीटें बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 आईआईटीज थी, 16। आज 23 आईआईटीज है, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल आईटीज थी, 9 ट्रिपल आईटीज थी। आज 25 ट्रिपल आईटीज हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहां 13 आईआईएम्स थे, आज 20 आईआईएम्स हैं। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत काम किया गया है। 6 साल पहले तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे,
आज देश में 22 एम्स हैं। शिक्षा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी तक पहुंचे, बराबरी से पहुंचे, सभी का जीवन बदले, हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, एएमयू के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी हैं। क्यों न 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हों। जैसे एएमयू के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है, क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए, जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इन महापुरुषों के जन्मस्थान जाएं, उनकी कर्मभूमि जाएं, उनके परिवार के लोग अब कहां हैं उनसे संपर्क करें। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सप्लोर करें। उदाहरण के तौर पर 75 हॉस्टल्स एक एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक और काम है जो देश के लिए एएमयू के छात्र छात्राएं कर सकते हैं। एएमयू के पास देश की इतनी बेशकीमती प्राचीन पांडुलिपियां हैं। ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मैं चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें डिजिटल, इन्हें वर्चुअल अवतार में पूरी दुनिया के सामने लाएं। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। जिस सदी को भारत की सदी बताया जा रहा है, उस लक्ष्य की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ता है, इसे लेकर पूरी दुनिया में क्यूरियोसिटी है। इसलिए आज हम सभी का एकमात्र और एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। जब इसको लेकर एक मजबूत नींव पड़ेगी तो लक्ष्य तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम
अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन मुद्दों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले हैं, इस मिट्टी से निकले हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपनी पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक परवरिश थी, अपने अपने विचार थे। लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष्य के साथ ही जुड़ गए। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो आजादी के लिए किया वही काम अब आपको, युवा पीढ़ी को नए भारत के निर्माण के लिए करना है। जैसे आजादी एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा तो लाभ भी सभी 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। ये विमर्श समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, ये काम आप कर सकते हैं, युवा साथी कर सकते हैं। साथियों, हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है। उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियों, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हां, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। साथियों, पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्ग का हो वो इंतजार नहीं कर सकता। महिलाएं, वंचित, पीड़ित, शोषित विकास का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, हमारे युवा, आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। साथियों, 100 साल पहले 1920 में जो युवा थे उन्हें देश की आजादी के लिए संघर्ष करने का, खुद को समर्पित करने का, बलिदान देने का अवसर मिला था। उस पीढ़ी के तप और त्याग से देश को 1947 में आजादी मिली थी। आपके पास, आज की पीढ़ी के पास आत्मनिर्भर भारत, नए भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करने का अवसर है।
वो समय था 1920 का, ये समय है 2020 का। 1920 के 27 साल के बाद देश आजाद हुआ था। 2020 के 27 साल बाद, जो कि अगले 27 साल 2020 से 2047 आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल है। वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, आप उस ऐतिहासिक समय के भी साक्षी बनेंगे। इतना ही नहीं, इन 27 साल में आधुनिक भारत बनाने के आप हिस्सेदार होंगे। आपको हर पल देश के लिए सोचना है, अपने हर फैसले में देश हित सोचना है। आपका हर निर्णय देश हित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करेंगे। हम सब मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। आप सभी को एएमयू के 100 वर्ष होने पर फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन 100 साल में जिन जिन महापुरुषों ने इस संस्थान की गरिमा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किया है, आज उनका भी पुण्य स्मरण करता हूं, उन सबका भी आदर करता हूं और फिर एक बार आज के इस पवित्र अवसर से भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व भर में फैले हुए अलुमनाई को भी मैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक शुभकामना करता हूं, उनके उत्तम भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं करता हूं और एएमयू के भी उत्तम भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this historical occasion to commemorate the centenary celebration of Aligarh Muslim University. On behalf of Aligarh Muslim University community around the world, I express my deepest sense of gratitude to our Honorable Pradhan Mantri Ji, Shri Narendra Modi Ji, for gracing the occasion as a chief guest. Our Honorable Pradhan Mantri Ji is a great visionary who has made his mark as one of the tallest global leaders with his dedication, sincerity and honesty of purpose for our country and fellow citizens. His inspiring presence and address as chief guest on this momentous occasion will be written in golden words in the annals of history of the Aligarh Muslim University. The Aligarh Muslim University is a symbol of nationalism, national unity, inclusiveness, scientific temper and excellence. And these qualities are epitomized in the personality and policies of Honorable Pradhan Mantri Ji, Shri Narendra Modi Ji. I convey my deep sense of indebtedness to our guest of honor and Honorable Shiksha Mantri Ji, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank Ji, for his esteemed presence on this historical occasion. Manya Shiksha Mantri Ji is leading from the front in transforming the educational landscape of the nation through the new National Educational Policy 2020. This policy is being lauded not just in India, but all over the world for its flexibility and foresightedness. The Aligarh Muslim University is fully committed to the ideals of National Education Policy for its implementation in letter and spirit. We are also indebted to Honorable Minister of Education and Honorable Minister of State for Education, Communications and Electronics and Information Technology, Shri Sanjay Shamrao Dhotre Ji, for his constant support for the growth and development of the Aligarh Muslim University. I express my sincere thanks to Shri Amit Khare Ji, Secretary Higher Education, Ministry of Education, Government of India, and Dr. Vineet Joshi Ji, Additional Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education for his continuous support and guidance. I also thank Shri Rajendra Kumar Ji, Director PMO, and Shri BVRC Purushottam Ji, PS to Honorable Shiksha Mantri Ji, for continuously guiding us and coordinating with us for successful conduct of this program.
I express my deep sense of gratitude to Department of Post, Ministry of Communication for timely issuance of postal stamp on the theme Centenary Celebration of Aligarh Muslim University. We are also thankful to UP Government, District Administration and National Informatics Center for their meticulous coordination of this event. I further express my deep sense of appreciation to Honorable Chancellor of AMU for blessing us with his presence. The Aligarh Muslim University is deeply grateful to alumni from all over the world, especially USA and West Asia, who have joined this program in large numbers and have made it international. I sincerely thank members of University Court, Executive Council, Academic Council, AMU teachers, staff, and student fraternity for joining today's event in vast numbers. Thank you. Thank you very much, Registrar Mr. Abdul Hamid Saab, for moving the vote of thanks. Ladies and gentlemen, the AMU Tarana is not merely a song. It's a worldwide phenomenon, a deluge, a rallying point for our alumni around the world. We have something called Tarane Wali feeling, and it has become a metaphor for unconditional love, allegiance, and reverence for Bani Darsgah Sir Syed Al-Rahma and Madre Ilmi Aligarh Muslim University. इस शानदार महफिल का आगाज हमने एक मजहबी रिवायत से किया था और इख्तिताम हम एक इल्म दोस्ती और हिब्बुल वतनी की रिवायत से करेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय असरारुल हक मजाज की नज्म नजर अलीगढ़ के चंद अशार हमारा दिल पजीर तराना है। Eminent visitors to AMU are moved by the foot tapping and hand clamoring josh in our tarana and have gone on record saying that it's the best song any university can have. तराने के बाद हमारे देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हम सब इसके सम्मान में खड़े होंगे। AMU तराना प्लीज।